Hello everyone, welcome to class number 22 of the chapter Discrete Mathematics. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक ये है कि हाउ कैन वी फाइंड द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ प्रेडिकेट्स। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक और प्रेडिकेट लॉजिक के बारे में डिस्कस किया था कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक या फिर प्रेडिकेट लॉजिक है क्या, और उसके बारे में हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक या फिर प्रेडिकेट लॉजिक के बारे में समझना है तो वहां पे हमें पहले दो टर्म्स के बारे में समझने पड़ेंगे। एक टर्म है प्रेडिकेट और एक टर्म है क्वांटिफायर्स। सो लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्रेडिकेट हम किसको बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रेडिकेट लॉजिक प्रेडिकेट किसको बोलते हैं, प्रेडिकेट में सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। जो प्रेडिकेट लॉजिक में हम टोटल एक स्टेटमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, प्रेडिकेट किसको बोलते हैं, उसके बारे में ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई प्रेडिकेट है तो उस पर्टिकुलर प्रेडिकेट का ट्रुथ वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ एग्जांपल्स को लेके आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो जैसे कि हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है, लेट p of x denotes the statement x less than 7. What are the truth values of p of 5, p of 9 and p of 3? तो p of x है क्या? सो p of x को अगर छोड़ दें वहां पे तो वो है हमारा प्रेडिकेट एंड x इज द सबसेट। सो p function is denotes the predicate means is less than 7 and x denotes the subject of that particular statement. Okay, what we have already discussed in the last class. So if we have to find the truth value of this particular statement by taking different kind of values, so how can we find the truth value? Let's check. So let's start the solution. So the question what is given to us is that p of x is x less than 7, means here x is the subject and is less than 7 is less than 7 is the predicate, what we have already know in the last class. Okay, so if I will I will put value 5 instead of x. Okay, so what will be the truth value? P of 5 will be 5 less than 7. So 5 less than 7 is true or false? Of course it's true. So the truth value of P of 5 is true. Then what is the truth value of P of 9? If I will put 9 instead of x, then the truth value of P of 9 will be false because 9 less than 7 is false. Okay, next. What is the truth value of P of 3? If I will put 3 instead of x, then my statement will be 3 less than 7. So 3 less than 7 is true or false? True. So the truth value of this particular statement is true. ओके, सो पता चला अगर आपको एक प्रेडिकेट लॉजिक को यूज करके कोई स्टेटमेंट प्रोवाइड किया गया है तो पर्टिकुलर प्रेडिकेट का ट्रुथ वैल्यू हमें उन वैल्यूज को लेके कैसे फाइंड करना है वो हमने अभी एक एग्जांपल को लेके देखा। तो वैसे और एक एग्जांपल लेते हैं और एक क्वेश्चन हमें प्रोवाइड किया गया है, लेट z of xy denotes the statement x is the capital of y. So x and y are the subject and is the capital of is the predicate. Okay, so the predicate is represented as z function is denoted as is the capital of, okay, and the subjects are x and y. Okay, so what are the truth values of g of Delhi comma India, g of Bhutan comma Kabul, g of China comma Beijing? Okay, सो यहाँ पे अगर हमें ट्रुथ वैल्यूज फाइंड करना है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का इन वैल्यूज को लेके तो कैसे फाइंड करें? तो हमें प्रोवाइड किया गया है क्या, g of xy is x is the capital of y, where x and y are subject and is the capital of is predicate. Okay, so first we will take the value g of Delhi comma India. So instead of x I will put Delhi, instead of y I will put India. So the statement will be Delhi is the capital of India. So this is true or false? True. So this particular statement is true. So the truth value of this statement is true. Okay, next, z of Bhutan comma Kabul. So instead of x I will put Bhutan, instead of y I will put Kabul. So the statement will be Bhutan is the capital of Kabul, which is false. So the truth value of this particular statement is false. Next, g of China comma Beijing.
So instead of X, I will put China. Instead of Y, I will put Beijing. So the statement will be China is the capital of Beijing. So the truth value of this particular statement is true because the statement is correct. Okay. So पता चला कि कैसे अगर हमें एक प्रेडिकेट लॉजिक को यूज करके कोई स्टेटमेंट प्रोवाइड किया गया है तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके बारे में हमने आज दो एग्जांपल लिया और दो एग्जांपल्स को लेके हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उसी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए और दो क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जो कि आप स्क्रीन में अभी देख सकते हो। इन दोनों क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं बाय यूजिंग प्रेडिकेट लॉजिक और उन्हीं स्टेटमेंट्स का ट्रुथ वैल्यूज आपको फाइंड करना है और कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है जिस तरीके से अभी हमने प्रैक्टिस किया। सो आई थिंक आज के क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।